Hi. Hello, bonjour. Uh, so today's welcome to the Bharat Times Transnational Webinar Series. This is our third series this year. So the topic today is holistic healing environment, the role of environment in holistic healing. So we have this every Saturday, 9:30 a.m. Montreal time and 7 p.m. Delhi time. Okay, so today the presenters will be Dr. Ram Sharma from UP, India, Jayashri Patelji, and myself. Okay, so we will start, but before that, there's some disturbance and okay, I'm going to mute everyone. All right, good. So let's start on the role of environment in holistic healing. So basically, we touched on holistic healing the last time too, that it has to be not just the physical healing, but also, I just want to make sure everybody's in mute. Okay. So it's not just the physical healing, but also the mental healing, mental, emotional, spiritual, and all that. And the role of environment, what role does that play? That environment plays a great role in holistic healing, and it starts at even before the birth. Even before the birth, when a person is conceived. I'm sorry, I keep on hearing echo. Okay. So it starts at the time, at the very early age, even at the time of conception, even before conception. This is one of the ideas that when I was learning meditation, I was starting to attend in groups and stuff. And so they used to talk about how one has to be prepared to bring a good soul into the world. And it's until you go through the process, you do realize that how, what impact it can have. So we have Hina with us today as well. So I would say it starts at a very, very early stage, even before conception, because you have to be ready. The person themselves have to be ready, and that's how we say sometimes some things are in heredity because they are passed on from the parents, and not just the genes or anything, but the something that's emotional, spiritual, mental, that's also passed on as well. For parents who have been from bhakti bhav and stuff, that passes on to the kids, and whichever state they have been during the time of pregnancy, that also passes on to the kid. And I speaking for instead of speaking for anybody else, I can speak for myself. So when I found out that I was going to have my son, my first thought was, okay, keep me happy. That was just naturally it came. And my son is also, he's always happy, always on the positive side and stuff. And we have seen this even in the studies and stuff too, that there are some kids who are born with either with Down syndrome or some other conflicts, etc. And that is due to what has happened prior to the birth and stuff. And even after the birth, this thing continues. And I'm not saying that we're stuck with whatever we have at birth, because we are humans above everything. Why do we consider ourselves human above everything else? Because we are capable. We can make our destiny. We can change our destiny as well. And we can write our own destiny, and that we can change. And that concept that I had learned from great palmist, Mr. Birla, and very famous, very great palmist in Canada. He is, and in Quebec, in Chenéville. And he had explained, like he was taking the palm prints,
And he would study them, and then he would mention that, okay, so from the study of the palm prints, this is what he sees. This is what's going on in your life, the usual thing, whether you believe it or not. But the point here is that he would tell you, okay, this is what I see, and if you want to change, this is what you have to do. So and then if you do go on to, you do take those points into consideration, yes, your life changes. So suppose that, for example, maybe a person is very angry. So the thing that he can do to be better, to better himself, maybe he has to learn to be not angry. So he participates, the person will participate, he or she, in, let's say, maybe listen to calm music, maybe do some meditation, do some praying. This brings the humbleness and calms the mind, calms the heart down and stuff. So the person stops being angry so much. So in that sense, then the environment, again, it has to be conducive to that, conducive to the person's well-being. And again, I learned the similar concept in transic healing as well. It's if one person in a household has some kind of problem, right? If one person has that kind of problem, a lot of the times people remove that person, let's say, send that person to a rehabilitation center, or any kind of a center, healing center, or to a hospital or anywhere like that, so that the person can get the treatment. However, when the person comes back to the same household environment and nothing has changed, everything goes back to the way it was. So in transic healing, this was a process that I studied in India, that the environment, so they would make sure in that center that another family member, at least one family member, came along with the person who had any kind of problem, whether physical, mental, emotional, whatever it may be. And then that person would also learn what the person who's in problem is going through, and they would see what are the healing methods are being used, whether it is in terms of food or exercise, or in the way of their behavior, how they have to do, what kind of things they have to watch out for. And then, because the same things have to be applied once that person returns home as well. Okay, so that is very conducive to healing if we can keep that environment too, because otherwise people will come back again and again and then go back. And this is actually what happens nowadays. Everybody works, they get busy, all that stuff, and then, whoa, once in a year for 2 weeks, we are out. We take a vacation and then we come back in the same, then we have to go again, which is good, not bad. We should be taking vacations, but regardless, the environment does take a toll. So it has a lot to do with the person's well-being. And so the holistic healing, if a person wants to be nurtured in all aspects, the environment has to be made conducive for that. And for that, we try many things. It's the noise. We also see, like, whether we're learning to nice music, or some people will pray in the morning. We have sometimes the mantras going in the place, or sometimes we have this noise of nice, the water fountain. People have that because they like that sound, and it also brings in a bit of moisture to that level of what is considered good. And the lighting system in the house too, and sometimes we paint on the walls, the color, different colors can have the effect on the mood too. And depending on what type of room it is, you'll see that type of paint. And the garden, a little bit of greenery sometimes, if it's, let's say, a room doesn't have any sunlight, at least, even if it's a plastic or something, or a natural one will be good, but at least adding some greenery, even the thought of that brings some healing to us. So you can start with little things like that, the things that come from Vastu. So just small steps, and you make your environment good, and you already start feeling good.
Okay, because all of these elements, they do contribute to that. So for this one, I just wanted to recite one small poem for this one. And again, this is going back to during the time of, okay, well, that I'm not going to tell you what time it is. What time it is that I'm talking about. You will find that out. Okay, so this poem is about इंतजार में उसके. Okay, so इंतजार में उसके पल बीते, दिन बीते, रातें बीती, महीने बीतने लगे. हम इस इंतजार की कड़ियों की एक माला बुनने लगे. कौन होगा, कैसा होगा, दिन में ही ख्वाब चुनने लगे. कब, अब, जब, तब आएगा, खुद से सवाल पूछने लगे. मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल की धड़कन, दिल लगी से परे, दिल से खिलवाड़ करने लगे. मैं चाहूं वो ये हो, मैं चाहूं वो हो, यूं ही बेबुनियादी सपने साकार करने लगे. मैं सोचूं उसके बारे में, मन उड़ान भरने लगे. सुर कोई भी लगा हो, हर राग मल्हार लगने लगे. कभी मन डरे, कभी परेशान, ये हम क्या करने लगे. इंतजार के पल बीते जल्दी, समय से फरियाद करने लगे. उसे आंखों में भरे, सीने में समाए, जिगर से सिमटे, हम बस इंतजार करने लगे. कोई ना समझाए हमें, कोई ना बताए हमें, हम मन ही मन प्यार करने लगे. सब कुछ न्यौछावर कर दूं, वार दूं उस पर तन मन, और कोई चारा न सूझा तो पुकार करने लगे. हर दिन, हर पल सोचे कब वो सामने आए मेरे, दो बदन एक जान, ये एहसास होने लगे. मेरा सर्वस्व सर्व ममता की छांव बिखेरे, हम फिर से तसल्लीबद्ध बेटे के जन्म का इंतजार करने लगे. So that was during the explanation during the time of pregnancy, and all that love that you feel, it is necessary. And it does, I would say it's necessary because it does pass on to the person being born as well. So that has to do with the environment as well. So that's enough on the environment during the holistic healing for me. So now we will pass on to Dr. Sharma, please. Welcome. Ma'am. Thank you. And good morning to you all. Here it is evening. Yes. We are also celebrating World Environment Day tomorrow, June 5th. So it is also very auspicious that we are discussing what is environment. पर्यावरण की अगर हम बात करें तो अपनी सनातन सभ्यता संस्कृति की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहीं पे एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है, अंतरिक्ष है शांति, पृथ्वी है शांति, वनस्पति है शांति. एक कल्पना की गई है कि देयर शुड बी ए पीस नॉट ओनली इन among human beings but among all the living beings upon the earth. कि प्रत्येक एटम में विश्व शांति की हमने कल्पना करी है. पर्यावरण की जहां तक बात है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति में जो हमें सिखाया गया है, पृथ्वी को माता माना गया है, गंगा माता माना गया है, पेड़ की पूजा हम करते हैं. वट वृक्ष की अभी 4-5 दिन पहले ही घर में पूजन हुआ है, बड़ की डाली को लाके पूजा गया. हालांकि ये चीज धीरे धीरे भारतवर्ष का ऐसी स्थिति आई, जो लाइट ऑफ द प्लैनेट थी, वो गुलामी की जंजीरों में 1000 वर्ष रही. उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा और धीरे धीरे जो चीजें एक्सप्लेन की जानी चाहिए थी वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए. लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि वे ऑफ लाइफ में वो जुड़ी रही. लेकिन धीरे धीरे ये वे ऑफ लाइफ भी अब हमारे से छूट गया है, तो हमें महत्ता नहीं पता है. गंगा की आप अगर देखें तो किसी भी विश्व में गंगा जैसी नदी नहीं है. और ये नदी नहीं है केवल, मैं इसका अगर आप देखें तो इसे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें त्रिपथगा कहा गया है कि जो है किस तरह से आप इसका किस तरह से अवतरित हुई, स्वर्ग से ये अवतरित हुई, भूलोक में ये आई और फिर पाताल लोक तक ये पहुंची. तो इसलिए इसे त्रिपथगा कहा गया है कि 3 जो है ये डिस्टेंस जो है कवर करती है. स्वर्ग से अवतरित होती है, भूलोक में ये विचरण करती है और फिर जाके पाताल लोक में मिल जाती है. इसकी महत्ता हम अगर देखें तो ये एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस तो
है ही गंगा की। अगर हम इसमें देखें तो किस तरह से ये पहाड़ों से जिग जैग करके नीचे भूलोक पे अवतरित होती है और कितनी सारी वनस्पतियां अपने साथ ही लेके आती है। इसी तरह से गंगा जल का अगर हम महत्व देखें, आज हम भूल गए हैं सर, हमें नहीं मालूम, धीरे धीरे हमारी जो वे ऑफ लाइफ है वो छूट गया है। अगर हम देखें इसका जो गंगा जल था वो कितना प्योर था, बहुत सारे डिसीजेज में काम आता था। हमारी जो होली सेरेमनीज होती थी उसमें हम गंगा जल का प्रयोग करते थे। और वो वनस्पतियां कहाँ से आई, अगर आप देखें तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके जो आश्रम थे, दे वर द लेबोरेटरीज। किसी भी विश्व में इतनी मौसमी फल, इतनी मौसमी फूल, इतने मौसमी सब्जियां, मसाले नहीं मिलेंगे आपको। ये उनकी परिश्रम का ही परिणाम है। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, ईस्ट और वेस्ट में क्या अंतर है जो मैं जान पाया। हमारे जो ओरिएंटल फिलोसफी है उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की कॉन्सेप्ट की गई, जितने भी चीजें दी गई वो सबको फ्री में दी गई। ज्ञान जो दिया गया कि यहाँ जो भी चीज को इन्वेंशन हुआ उसे फ्री में बांटा गया। वेस्ट में ये रहा, जो भी इन्वेंशन हुई उसके पीछे कैलकुलेशन हुई, किससे कितना प्रॉफिट हो, किस तरह से हम इसका मार्केट बनाए, किस तरह से हम बेचें। तो ईस्ट और वेस्ट में मैं यही अंतर पाता हूँ। ईस्ट में जो चीजें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोगों के सुख और प्रसन्नता के लिए बनाई गई और सभी व्यक्तियों तक वो फ्री में उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास किया गया। पर्यावरण की जहां तक हम देखें, बात करें तो हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें प्रदूषण नाम का शब्द नहीं मिलता है, क्योंकि प्रदूषण था ही नहीं। हमने प्रकृति को अलग नहीं माना है, हमने प्रकृति और मानवीय प्रकृति को एक ही माना है, अलग नहीं माना है। अगर हम आज प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं तो हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। हम ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर प्रकृति नष्ट हो जाती है पूर्ण रूप से तो हम नहीं कर पाएंगे सर्वाइव। ये एयर कंडीशंस रूम, ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमें नहीं बचा पाएंगे। तो हमने उसको एक ही माना है, प्रकृति और मानवीय प्रकृति को दो हमने नहीं डिफ्रेंशिएट किया है। और धीरे धीरे हम उन चीजों से, वे ऑफ लाइफ को हमने छोड़ दिया और आज हम अपार्टमेंट तक कैद होकर रह गए हैं। और जो है हम सोच रहे हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो गोली खा के हमें बढ़ जाएगी, या ऑक्सीजन सिलेंडर हम ले आए तो हमारी जो घरों के जो है प्रदूषण खत्म हो जाएगा या एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाएगा। हम एक लिविंग बीइंग, एक पौधे, एक वृक्ष की हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में तो संजीवनी बूटी भी पहाड़ों पे ही, किस तरह से हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी और मूर्छित अवस्था में वो पड़े थे और सुसैन वैद्य ने कहा था कि अगर इनके प्राण बच सकते हैं तो एक संजीवनी बूटी है, वो फला फला पहाड़ पे आपको जाना पड़ेगा और वहां से आपको छांट के पहचान के वो लानी पड़ेगी। वो पहाड़ी उत्तराखंड के ही पहाड़ थे। उन हनुमान जी को ज्ञान नहीं था कि पहचान नहीं पा रहे थे, वहां गए तो सभी जो है वनस्पतियां वो टिमटिमा रही थी, वो पहचान ही नहीं पाए कि संजीवनी बूटी कौन सी है, तो वो पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे। तो ये अगर हम देखें आज भी फूलों की घाटी, हमारे जो पहाड़ है, इतनी रिचनेस ऑफ फ्लोरा एंड फोना अपने आप नहीं है, ये ऋषि मुनियों के अथक परिश्रम का परिणाम है कि उन्होंने इतने फूल दिए, इतने मौसमी फल दिए और एक ऐसी प्रकृति, एक सुदृढ़ प्रकृति बनाई जिसमें हमारा जो जीवन है वो सुचारू रूप से चला। उसमें कोई वायरस या कोई इस तरह के कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, प्रदूषण, ये चीजें नहीं थी। ये धीरे धीरे बाद में हम इस प्रकृति का जो है महत्व समाप्त करते चले गए और हम जो है उन चीजों से अब प्रकृति से दूर होते चले गए। आज हम देखें तो हम पाते हैं कि हम प्रकृति और हमारे बीच एक बहुत बड़ी जो है एक खाई पैदा हो गई है। हम अपने आप को खुश हो रहे हैं। आज कल भी बहुत सारे फोटो फेसबुक पे डाले जाएंगे पेड़ों के, पेड़ लगाते हुए, पेड़ रोपते हुए। हम दिन ही क्यों मना रहे हैं? पर्यावरण दिवस नहीं, हमें तो पर्यावरण साल बनाने की जरूरत है। अगर हम दिन पे ही हम सीमित रह गए तो ये प्रकृति ज्यादा दिन नहीं होगी। हम बहुत सारी, आज भी मैं देखता हूँ कि अगर हम पौराणिक अपने ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें हम जितने भी पेड़ पौधे थे उनका अगर वर्णन पाते हैं तो बहुत सारी चीजें विलुप्त हो चुकी हैं, वो धीरे धीरे और हो रही हैं, क्योंकि हमारा जो है सिर्फ मेटेरियलिस्टिक गेन तक ही हम सीमित होकर रह गए हैं। और हमारी जो प्रकृति है, हमारी प्रकृति भी बहुत चेंज हो गई है। हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उन चीजों का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रह गया है। वो लाइफ जो है जिसे हम मान रहे हैं, लाइफ आर्ट ऑफ लिविंग, हम भूल चुके हैं। लाइफ जो एक सेलिब्रेशन होना चाहिए था वो दवाइयों पे केंद्रित हो गया है, डॉक्टर्स पे केंद्रित हो गया है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स पे हम केंद्रित होकर रह गए हैं। हमें जो ऊर्जा मिलती थी
रेकी की अगर आप देखें तो रेकी की जो एनर्जी है वो नेचर से ही हमें प्राप्त होती है। मैंने भी रेकी पढ़ी है और मैं करता भी हूँ, मैं भी रिजुवनेट करता हूँ, प्रकृति में मैं जाता हूँ, मेरा भी गांव है, मेरे भी जो है बाग पेड़ हैं, और मैं जाके वहाँ अपने आप को बहुत खुश महसूस करता हूँ। इतनी खुशी मुझे जो है प्रमोशन या बहुत बड़े जो है मेटेरियलिस्टिक गेन से नहीं होती है, कि अल्टीमेटली व्हाट इज द एम ऑफ आवर लाइफ। हमें इस तरह का वातावरण हमें क्रिएट करना होगा कि हम लोग प्रसन्नता पूर्वक रह सकें। मैटेरियलिस्टिक गेन में तो हम अपने आप को एक जाल में पाते हैं, एक सेल्फ क्रिएटेड वेब हमने तैयार किया है कि हमें हम दिखाई दे रहे हैं कि हम बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन वास्तव में नहीं है। हम लग रहा है कि हम बहुत बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, जो वास्तव में वास्तविकता नहीं है। आज भी मैं देखता हूँ छोटे से छोटे डॉक्टर के पास भी भीड़ है, छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी भीड़ है। जो चीजें ये नहीं थी 30-40 वर्ष पूर्व, इतने डॉक्टर्स इतने हॉस्पिटल्स भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं थे। तो आप सोच सकते हैं क्या इतने लोग बीमार होते थे या नहीं होते थे? मैं कहूंगा नहीं होते थे, क्योंकि हमने जो वे ऑफ लाइफ को धीरे धीरे प्रकृति से, पर्यावरण से अपने आप को दूर कर लिया है। हमें जो है सारी मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, मौसमी फूल, उनके बीच हम रहते थे और शुद्धता का जो है वातावरण चारों तरफ था। आज हम क्या खा रहे हैं ये एक सोचने का विषय है। जितने भी हम मौसमी फल देखें तो वही आप जाके देखिए कहाँ से वो निकल के आ रहे हैं, रेफ्रिजरेटर से, हमारे जो है ग्रोसरी स्टोर्स में वो रखे हुए हैं, और कितने दिन तक वो रखे हुए हैं, उनके अंदर कितने विटामिन हैं, क्या इस पे किसी ने सर्वे किया है? आप 2 महीने ग्रोसरी स्टोर में एक फल या सब्जी आप रख देते हैं और ला के उसे आप खाएंगे, तो दैट इज ऑलरेडी डेड। उसमें कितने विटामिन हैं कहना मुश्किल है। तो यही चीज है, हमें पर्यावरण की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को मानवीय प्रकृति को वास्तविक प्रकृति से जोड़ना पड़ेगा। और अगर हम नहीं जोड़ पाए तो हमारे लिए समस्याएं, रोज नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज भी मैं देख रहा था भारतवर्ष में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो 50 होना चाहिए, वो ज्यादातर बड़े बड़े शहरों का वो नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, और हम ऐसी छोटी छोटी चीजें हम ला रहे हैं। ओड इवन कार्स का, कारों की संख्या, अरे पेड़ लगाइए ना आप, थोड़ा सा एक पर्यावरण की तरफ भी आप ध्यान दें। हमारे पास अगर जगह नहीं है तो छत तो है, छत पे हम 20-25 गमले ला के रख सकते हैं, उसमें छोटे छोटे मौसमी फल सब्जियां उगा सकते हैं। छोटा छोटा भगीरथ प्रयास हम कर सकते हैं। गंगा भी ऐसे ही नहीं मरी है, गंगा में कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं, तब गंगा बनती है। भगीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा अवतरित होती है। तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी, और एक सोचना नहीं, हमें ये चीजों को मेटेरियलाइज करना पड़ेगा। बातचीत या मनन या चिंतन या फोटोग्राफ से काम अब नहीं चलने वाला है। हमें पर्यावरण दिवस से ज्यादा पर्यावरण वर्ष की हमें आवश्यकता है कि हम रोज, हर सेकंड, हर मिनट ये प्रयास करें कि हम पर्यावरण को क्या दे सकते हैं, हम इसको कैसे बचा सकते हैं, इसको कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। नहीं तो हम देख रहे हैं ये प्रदूषण, जो कि हर तरह का प्रदूषण से हम आज झेल रहे हैं, वो ध्वनि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, हर तरह का प्रदूषण में हम जी रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम तो इतने मॉडर्न हो गए हैं। इसका वन्य जीव जंतुओं पे भी फर्क पड़ रहा है। आज बहुत सारे वन्य जीव जंतु भी नष्ट हो गए हैं। पेड़ों के साथ नष्ट होने के साथ ही वन्य जीव जंतु भी नष्ट हो गए हैं, और उनका व्यवहार भी चेंज हो गया है। आज मैं बंदरों को देखता हूँ कि वो किस तरह से मानवीय जितनी भी बस्तियां किस तरह से वो एकदम अटैक कर रहे हैं, वो एकदम गुस्से में है, वो लगभग ऐसी स्थिति में आ रहा है, लगता है कि वो बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएंगे। और यही स्थिति एक दिन मानव की भी होनी है। ये मेटेरियलिस्टिक गेन्स, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़ी बड़ी कारें, ये हमें नहीं बचा पाएंगे। हमें वहीं प्रकृति की गोद में ही जाना पड़ेगा जहाँ से हमारा जीवन का आरंभ हुआ है। और ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। अगर हम ड्रग कंपनीज को देखें और हम कॉरपोरेशंस को देखें, वो सब प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, और एक आपको एक ऐसा सब्ज बाग दिखाया जा रहा है प्रगति का, जिसमें मानव खुशी नहीं है, वो सिर्फ दौड़ रहा है, मंजिल उसे नहीं पता कि उसकी मंजिल कहाँ है, कितनी दौड़ उसे दौड़नी है। तो उसमें तो टोल्स्टॉय की एक कहानी मुझे ध्यान आती है कि एक धावकों को बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक जितना आप दौड़ लेंगे वो जमीन आपकी होगी। तो एक धावक दौड़ना शुरू करता है, सूर्य उदय के साथ दोपहर हो जाती है, काफी जमीन वो कवर कर लेता है। उसके बाद शाम का समय 4 बजे तक उसके मन में विचार आता है कि वो लगभग थक गया है, क्यों ना जितनी जमीन उसने कवर की है उसे ही वो मान के संतुष्ट हो जाए,
लेकिन उसकी ग्रीड, उसका लालच कहता है कि अभी 2 घंटे बचे हुए हैं, इतने में तो तू पता नहीं 10-15 एकड़ और कवर कर लेगा। और आखिर में क्या होता है कि 6 तो बचते हैं, लेकिन वो भी जो है थक हार के गिर जाता है, मर जाता है, और उसे उतनी ही जमीन मिलती है जितने में वो दफनाया जा सके। तो यही चीजें हमारे साथ भी हो रही हैं कि हम दौड़ तो बहुत बहुत तेज दौड़ रहे हैं, और आखिर में हमारी ये दौड़ कब खत्म हो रही है हमें नहीं पता, बहुत तेजी से खत्म हो रही है। ये जीवन जो है बहुत छोटा सा रोल है, ये कब खत्म हो जाए ये हम नहीं जानते। तो ये है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा हम समाज को दे सकते हैं। आप इतिहास उठाकर देखिए, उसमें किसी भी आप जिन लोगों ने प्रयास किया, जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन्होंने कष्ट उठाए, जिन्होंने समाज को कुछ देने का प्रयास किया, वो गुरु नानक हो, गुरु गोविंद सिंह हो, मीराबाई हो, स्वामी विवेकानंद हो, लक्ष्मीबाई हो, शिवाजी हो, उन्होंने प्रयास किया समाज को देने का। वो कोई बहुत बड़े टाटा बिरला डालमिया नहीं थे। गुरु नानक जी ने तो सच्चा सौदा, उन्हें जो पैसे मिले थे वो भी उन्होंने बांट दिए थे, और सच्चा सौदा उसे कहा था। तो ये हमें आज हमारा एक जमीर अगर बचा हुआ है, मैं तो एक चीज कहता हूँ, पता नहीं आपको शायद अच्छा लगेगा, स्पष्ट बोलने की मेरी आदत है। मैं मानवीय संवेदनाएं, भावनाएं, फीलिंग्स, पिटी ये नजर नहीं देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि हम रोबोट्स बन गए, प्रोग्राम रोबोट्स, जिसका सिर्फ काम पैसा कमाना और पैसा खर्च करना है, या वॉकिंग कोर्स बन गए हैं कि हम गलत को गलत ही नहीं कह पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमें कहना क्या है, करना क्या है, सोचना क्या है। ये वाली स्थिति हमारे सामने हो गई है। तो यही है, हमें पर्यावरण की तरफ ध्यान देखना चाहिए। और हमारे जो ऋषि मुनि है, उन्होंने कॉन्सेप्ट और दी थी, भगवान जो उन्होंने बनाया, वैसे भूमि, गैसे गगन, वासे वायु, नैसे नीर, ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दी कि ये भगवान है, वो प्रकृति तो है। वैसे भूमि, अब मदर अर्थ, गैसे गगन, आकाश, वासे वायु, नैसे नीर, पानी, ये सब जोड़ के उन्होंने भगवान कहा कि ये आपका भगवान है, इसे आपको नष्ट नहीं करना है, इसकी पूजा करनी है, इसका सम्मान करना है, और ये भगवान आपको बचाएगा, ये भगवान आपकी रक्षा करेगा। लेकिन आज हम भगवान को ही भूल गए हैं। ना हमने भूमि को जो है पवित्र छोड़ा है, ना हमने वायु को पवित्र छोड़ा है, और ना ही हमने नीर को छोड़ा है। और हम कह रहे हैं कि हमने तो बहुत तरक्की कर ली, इतनी तरक्की शायद हम दूसरे ग्रह पे जाने की सोच रहे हैं। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन फैलाई जा रही है कि अगर धरती आपके रहने योग्य ना रही तो हम दूसरे ग्रह में जाके माइग्रेट कर लेंगे। अरे भाई, उनसे पूछो, उन साइंटिस्ट से, क्या दूसरे ग्रह में पृथ्वी जैसा वातावरण आप खोज पाए किसी ग्रह पे, या कोई ऐसा मानव आप खोज पाए दूसरे ग्रह पे, या चांद पे, या मंगल पे, जहाँ पे आपको रहता हुआ मिला, तो आप कैसे चले जाएंगे? तो ये जो मिसकॉन्सेप्शंस फैलाए जा रहे हैं नई पीढ़ी के सामने, और उन्हें जो एक सच्चा ज्ञान और एक रियलिस्टिक पिक्चर नहीं दिखाई जा रही है, और एक सब्ज बाग दिखाया जा रहा है, और एक फैंटेसी जो क्रिएट की जा रही है, उस फैंटेसी से हमें निकलना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूंगा, दुख की बात ये होती है कि रास्ता बहुत तेजी से पीछे का बंद होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि वापस लौट पाना संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसी के साथ मैं कुछ एक अपनी कविता जरूर मैं पढ़ना चाहूंगा, इसी से रिलेट करूंगा। कविता का शीर्षक है प्रगति एक छलावा। ये प्रगति जो हम प्रोग्रेस हम कह रहे हैं, ये वास्तव में है क्या? जीने की चाह में हम कहां से कहां तक चले गए। यहाँ से हम चांद पर पहुंच गए और मंगल ग्रह पर पहुंच गए। जीने की चाह में हम कहां से कहां तक चले गए। सोचा तो था जीवन का आरंभ, पर यहाँ तो हर पल चले गए। हमने सहा है और पाया है कि जीवन है बहुरूपिया। हम जिसको समझते रहे उन्नति अब तक, वह के केवल छलावा आंकड़ों का डाटा। इतनी हो गए, इतनी ये हो गया, वो हो गया, ये सब छलावा आंकड़ों का है। समझने में ही हमसे कुछ भूल हुई है। वास्तविक प्रगति अब भी मानव से बहुत दूर है। जीवन थोड़ा है पर काम बहुत, अब ऐसे में आराम कहाँ। चलने का नाम है जिंदगी, रुकने का फिर काम कहाँ। आओ बैठे नदी किनारे, गीत पुराने फिर दोहराएं। प्रकृति की स्वप्निल नगरी में मन के सोए तार जगाएं। नदी के किनारे आपको बैठना पड़ेगा, पेड़ के नीचे, और सच्चा सौदा आपको करना पड़ेगा। यही आपके जीवन। एक आई वुड लाइक टू रिसाइट वन मोर पोएम आई हैव रिटन आई थिंक 15 years back, and the title of the poem is Plant a Tree. Plant a tree, become tension free, water it with care, no pollution will be there. Birds will chirp, cool breeze will pop, it provides shadow for peace of dove. Give us lessons of sacrifice, make us learn
that it is suffice. तो यही सब चीजें हैं, हमें सोचना है। पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, पर्यावरण वर्ष मनाने का समय आ गया है। प्रकृति को, मानवीय प्रकृति से हमें जोड़कर चलना पड़ेगा, सोचकर चलना पड़ेगा। अगर हमने ये पंचभूत बाहर ही हमने पोल्यूट कर दिए तो हमारे अंदर भी वो पोल्यूट हो चुके हैं। और मैं आज देख रहा हूँ कि जो बाहर इम्बैलेंस मुझे प्रकृति में नजर आ रहा है, उतना ही इम्बैलेंस मानव के अंदर भी नजर आ रहा है। हम भूल रहे हैं, हम अब उस चीज को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं नशे की आगोश में। कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके, कई बार बड़े बड़े मकान खरीद कर हम उसे भूलने की कोशिश कर रहे हैं। बट दैट शोज द इम्बैलेंस ऑफ आवर ओन पर्सनैलिटी, द इम्बैलेंस वी हैव क्रिएटेड इन द नेचर। वही जो हमने दिया है वही हमारे पे वापस लौट के आ रहा है और आएगा। अगर हमने अच्छा नहीं किया है तो वो वापस जो हमने दिया है प्रकृति को वापस लौट के आना है। और हमें ये ना केवल सहन करना है, हमें ये भी सोचना है कि हम अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, क्या दिया है, हम क्या भविष्य उन्हें दे के आ रहे हैं। क्या यही भविष्य हमें मिला था? नहीं, आज भी समय है हमें जागने का। बहुत दुख होता है कि हम बात करते हैं बड़ी बड़ी एयर कंडीशन रूम्स में पर्यावरण दिवस, फोटो डाल के मना दिया जाएगा, बड़े बड़े भाषण दे दिए जाएंगे, पेड़ जो है लगा दिए जाएंगे, लेकिन 2 दिन बाद वो पेड़ सूख भी जाएंगे। उनकी कोई चिंता नहीं करेगा कि हमने जो पेड़ लगाने का एक ड्रामा किया है, उनको बड़े होने के, उनके वो फोटो कहाँ हैं जो वो बड़े हो 1 साल पहले लगाए थे, उन पेड़ों के वो फोटो कहाँ पे हैं, वो भी हमें पोस्ट करने चाहिए। 1 वर्ष पूर्व जो हमने पेड़ लगाए थे वो 1 साल में कितने बड़े हुए हैं, या 4 साल पहले जो लगाए थे वो आज कहाँ हैं। ये केवल एक नाटक या धोखा देने से काम नहीं चलेगा। हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। और ये जो एक प्रोग्रेस और प्रॉफिट और गेन की जो एक वेब, सेल्फ क्रिएटेड वेब हमने तैयार कर दिया है, इस जाल में कौन फंस रहा है? इस जाल में हम ही फंस रहे हैं। और ये एंगर और ज्यादा बढ़ता जाएगा और हम मानेंगे हमारे लिए ये बराबर वाला देश जिम्मेदार है, हमारी जो प्रगति या हमारे दुखों के लिए फला व्यक्ति जिम्मेदार है। हम आपस में और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि लेट्स ट्राई, लेट्स मेक हैंड्स टुगेदर, लेट्स क्रिएट पीस, लेट क्रिएट्स लव, लेट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ पीस एंड लव सो दैट लाइफ विल बिकम ए सेलिब्रेशन। एक कविता के साथ जरूर अंत करना चाहूंगा। ये मैं लैंप ऑफ लव से मैं पढ़ रहा हूँ और कविता का शीर्षक है बी फ्रेग्रेंट। महकते रहो और चहकते रहो प्रकृति की तरह, एक फूल की तरह। We shall be fragrant in the orchard of our mind as love, taking our tears and making it a most wonderful rainbow. We shall light our lamp of love, blossoming inside as our dreams come alive, singing in the pure melodies of life inside a great, vast ocean of silence. The lyre of life forever sings, ever within a fragrant loving, as a sign of love's touch. यही आशा करता हूं कि हम लोग प्रयास करें और एक ऐसा वातावरण दें जिसमें प्रेम और शांति, संतोष का वातावरण हो और हम आपस में लाइफ विल बिकम ए सेलिब्रेशन। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Thank you, Dr. Sharma. Beautifully said. There should be a balance and we must strive to gain that back again because it will come back to us. This is Jayashri ji. Yes, on to you, please. Namaste everyone. डॉक्टर राम शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया पर्यावरण के बारे में। तो मैं उसमें ही एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने तो गए थे, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता हमारे साथ। तो हम क्या करें? हम अपने ही घर में एक तुलसी का प्लांट, जो कि बहुत ही होली है और ऑक्सीजन के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए, हर रोगों के दवा का इलाज है। तुलसी माता का प्लांट हम अपने घर में ही रखें तो हमें अच्छी वाइब्रेशन भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगा। और मेरे पास एक पुस्तक है तुलसी के चमत्कारिक गुण, तो इसमें हर रोगों में तुलसी का, और मैंने कुछ तो प्रयोग भी किए हैं। तो तुलसी के इतने ज्यादा उपयोग और
उसका हम लाभ ले सकते हैं अपने हेल्थ के लिए। तो ये सब करना बहुत ही जरूरी है आज के जमाने में। तो हम यहाँ तो विंटर में तो हम पूरा 6 महीना ऐसे बाहर फ्रेश हवा नहीं मिलती, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो घर में ये तुलसी का पौधा होना बहुत ही जरूरी है और हमें जरूर ही ये लगाना चाहिए। अब हम हिंदू है और तुलसी को हम माता भी बोलते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं और उसका इतना एडवांटेज है, तो क्यों नहीं हम एक पौधा तुलसी माता का लगाए या वृंदावन बनाए। तुलसी, बहुत सारी तुलसियां वहाँ एक जगह पे लगाकर अपने घर को ही वृंदावन बना ले तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। अब मैं आती हूँ अपने दूसरे टॉपिक पर, पर्यावरण को के बारे में तो सब कुछ राम शर्मा जी ने बता ही दिया। पेड़ पौधे उगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हमारे कनाडा में तो हर घर के बाहर एक पेड़ होता है। इतने सारे समर में तो कितना सारा ग्रीनरी, बहुत ही अच्छा है ये बात। और इंडिया में भी सबको हर घर के बाहर एक पौधा लगाना चाहिए तो बहुत ही अच्छी बात बनेगी। बड़े बड़े घर बनाते हैं, उससे ज्यादा हाफ जगह में घर बनाओ, हाफ जगह में गार्डन बनाओ, तो ये ऑक्सीजन के लिए हम वहाँ वॉक करें, बैठे तो अच्छी हमें एयर मिले, तो ये भी हम लाभ ले सकते हैं। अब घर के एनवायरनमेंट की बात आती है, क्योंकि बच्चे तो आपका कल है, फ्यूचर है, देश का कल है। तो बच्चों को बड़ा करने में कैसे हम बड़ा करते हैं, तो बच्चे तो कच्ची मिट्टी के जैसे होते हैं, जैसे हम डालेंगे तो वही शेप में वो बनेंगे। तो हमारा बिहेवियर, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी रिलेशनशिप, सबका असर सभी लोगों का नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड सब एक बच्चे पर इफेक्ट करता है। तो बच्चों को हम खुद प्यार से रहे तो बच्चे भी प्यार से रहेंगे। गुस्सा तो हर एक को आता है, लेकिन हमें कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। योगा, मेडिटेशन, हमारी दिनचर्या ऐसी बनाए कि बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करे, थोड़ा बहुत पूजा पाठ, मंत्र लाइक गायत्री मंत्र, ऐसे कुछ मंत्र सिखाए। और त्योहारों पर हम जैसे शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करें, जन्माष्टमी पर कृष्ण का सेलिब्रेशन, कृष्ण जन्म का। तो ऐसे बच्चों पे, माइंड पे भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। हम क्या करते हैं, हम करते हैं घर में, इसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया, हम नेगेटिव ही सोचते रहते हैं हर एक बार। जॉब पे उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसको मैं एक दिन डांट दूंगी। गुस्सा तो हम हर एक को आता है, लेकिन हमें इसे पॉजिटिव वे में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हम सब मानव हैं, हमसे भूल होती है, लेकिन अच्छी पुस्तकें पढ़ के, अच्छे इंसानों के साथ मिलके, या मंदिर में हम सत्संग करते, तो हमें पता चलता है कि हमारी जो रिलीजियस पुस्तकें, हमें पता चलता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। तो हमें ये इस सब से हमारी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी घर में बनानी चाहिए, तभी घर का वातावरण सब खुश रहेंगे। और बच्चे बड़े होके ऐसे बच्चे बाहर निकलेंगे तो देश के लिए भी बहुत अच्छा करने की उनमें एक शक्ति होगी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उनको भी मिलेगी। लेकिन हम करते हैं, बच्चा छोटा होता है तो बच्चा जब स्कूल से आता है तो हमें सब बताता है, आज स्कूल में ये किया वो किया। और कभी थोड़ा बड़ा होता है, कुछ गलती कर दे स्कूल में, किसी को मार दे, तो हम क्या करते हैं, उसे पनिश करते हैं। पनिश नहीं करनी चाहिए, हमें उसे समझाना चाहिए। हम कहते हैं यू आर ए बैड बॉय, नहीं, हमें उसे कहना चाहता है यू आर ए वेरी गुड बॉय, बट आपने जो किया है वो गलत है। तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, रिजेक्टेड नहीं। जब बच्चे को हम रिजेक्ट करते हैं तो क्या करता है वो, दूसरी बार वो कुछ करेगा, ज्यादा गलती करेगा, ज्यादा दोस्तों की सुनेगा, और वो घर में पेरेंट्स को बताएगा नहीं फिर, क्योंकि डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी, तो बच्चा हमसे बात छुपाने लगता है। तो इसका बहुत बड़ा मेंटल और उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। बाहर गलत काम करता है, पेरेंट्स को पता नहीं चलता, क्योंकि हमसे वो बात छुपाता है। तो
पहले से ही हम बच्चे की हर बात को एक्सेप्ट करें, उसे सही और गलत का डिफरेंस समझाएं, क्योंकि अब तो स्कूल में भी ड्रग्स सभी कुछ आ गया है, बुली, ड्रग्स, एवरीथिंग, तो क्योंकि हर एक बच्चा तो सेम घर से, सेम एनवायरनमेंट से नहीं आ रहा, डिफरेंट कम्युनिटीज के, डिफरेंट कंट्रीज के सभी बच्चे अलग अलग संस्कार, अलग अलग हैबिट लेकर आते हैं, तो बच्चों पर इसका इफेक्ट तो होगा ही होगा। तो हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत। एक्सेप्ट जब हम करेंगे बच्चे की हर बात को, तब वो उसे बाहर जाके उससे लड़ने की ताकत मिलेगी, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि घर से रिजेक्टेड होगा तो वो बाहर उसी एनवायरनमेंट में, उसी हैबिट में वो जुड़ जाएगा और वो सबके लिए ठीक नहीं होगा। और क्या हम अब क्या कर रहे हैं, हमारे देश का वातावरण देखो, कश्मीर के जो है सभी लोग फियर में जी रहे हैं अभी, सभी कश्मीर का कितने सालों का मुद्दा है, लेकिन पॉलिटिशियन, जब भी बच्चा टीवी ऑन करेगा क्या देखेगा, पॉलिटिशियन एक एक को नीचा दिखाने की कोशिश, एक एक का विरोध करने की कोशिश। तो ये सब बच्चे के माइंड के लिए तो अच्छा नहीं है ही नहीं। और क्या है, बॉलीवुड की मूवीज, आजकल क्या मूवीज बनती है वो देखेगा, क्या सीरियल बनती है सास बहू के झगड़े, तो वो देखेगा तो इफेक्ट तो होगा ही होगा बच्चे के माइंड पर। लेकिन हमें एज ए पेरेंट बच्चों को अच्छा सिखाना बहुत ही जरूरी है, उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए, तो भी तो वो देश का कल है, हमारा फ्यूचर है, तो अच्छा हो पाएगा, अच्छा देश भी थोड़ा सा, देश में परिस्थितियों में भी सुधार लाएगा। तो और हमें खुद को भी थोड़ा बहुत, हमारा बिहेवियर कैसा है, तो सबको चेंज करने की जरूरत है आजकल। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव। ओके, बोलिए। ऐड करना चाहूंगा, अब यूएस में भी मैम देखिए, छोटे बच्चों के स्कूल्स में कितनी गन शूटिंग की घटनाएं हो चुकी हैं और हो रही। मैं वही बोलने वाली थी। जी जी। नहीं, बोलिए आप। नमस्ते आंटी जी, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। आई एम हिनाया, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। लाइक मेरे घर में ऐसा ही माहौल है कि मेरे मदर और मेरी फैमिली ने मेरे को स्टार्टिंग से यही बोला था कि अगर तुम लाइक मेरे को घर पे आके सभी बात बता देना, सभी बात A to Z, पर बाहर से नहीं मेरे को कुछ भी पता चलना चाहिए। अगर तुम गलत भी हो तुम फिर भी मेरे को आगे बता दोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, पर बाहर से नहीं मेरे को कुछ भी पता चलना चाहिए। मैंने आज तक हमेशा, अब अगर मैं गलत भी होती हूँ तो अपनी मम्मा को आप आकर बताती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मा ने मेरे को हमेशा ये सिखाया कि ओके ठीक है, बच्चों से ही गलती होती है, हम लाइक नोबडी इज परफेक्ट हियर, एवरीबॉडी हैज डूइंग मिस्टेक, सब मिस्टेक करते हैं। सो पर पेरेंट्स को ये है कि पेरेंट्स, जब मैं घर पे आके बताती थी कि मम्मा यार मैंने ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, मम्मा कहते इट्स ओके, कोई बात नहीं, आई नो तू रॉन्ग है, इट्स ओके, पर तुमने मुझे बता दिया ये बात ऐसे नहीं, ऐसे ठीक होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम ऐसे करना, दैट्स इट। आई एम फुली एग्री विद यू आंटी जी। लाइक माहौल पे बहुत डिपेंड होता है कि पेरेंट्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन लाइक इट्स अ गैप जनरेशन, क्योंकि थिंकिंग बहुत डिफरेंट है। सम पेरेंट्स आर वेरी हार्ड टू थिंक, लाइक वो इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे आजकल के मॉडर्नाइजेशन एरा में। सो लाइक पेरेंट्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए बच्चों के साथ, कि बच्चों का भी सोचना चाहिए कि बाहर का माहौल कैसा है, और पेरेंट्स को उनके साथ चेंज होना चाहिए, ना कि अपनी लाइक पुरानी थिंकिंग ही रखनी चाहिए। आई रिस्पेक्ट द इंडियन कल्चर, राइट, मैं भी इंडियन कल्चर को मानती हूँ, पर इन्वायरमेंट के साथ और लाइक मॉडर्न एरा के साथ चेंज होना चाहिए। थैंक यू हिना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर अ वेरी गुड गर्ल। I know you too aunty ji, because of you. नो, तो आपके पेरेंट्स के जो आपने रेस किया है, ये आपको देखकर पता चलता है ना कि हाउ यू आर, और मैं अमिता खन्ना जी के लिए भी बोलना चाहूंगी कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है कि समर में और मार्च ब्रेक में जो वो बच्चों के कैंप लगाती है, उसमें वो बच्चों को बहुत अच्छा सिखाने की कोशिश कर रही है। और वो पहले अकेली उन्होंने स्टार्ट किया, और फिर सब धीरे धीरे थोड़े बहुत जुड़े हैं, लेकिन आपकी वो हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को वो भगवान की पूजा, मंत्र, योगा सब वो सिखाते, डिसिप्लिन,
तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो मैं मार्च ब्रेक में गई थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आई सैल्यूट दिस फॉर यू। ओके, एंड बहुत ही अच्छा लगा आप वो जो काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत सालों तक करती रहे। Thank you, Jayashree, and thanks for your help. You get involved, and that makes a big I didn't do difference. anything. नहीं, सबके करने से community work is done with everyone. लेकिन आप बहुत अच्छा कर रही हैं और मुझे लगता है कि समाज में सब लोगों को धीरे धीरे आगे आके थोड़ा बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ईगो नहीं रखो, बिल्कुल भी ईगो को मारो, सब प्रेम से रहो, एक दूसरे की हेल्प करो, तभी तो हम अच्छा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो कितना अच्छा हम शांति का वो भी एक बिल्डिंग है, मंदिर भी एक बिल्डिंग है, लेकिन हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, शांति मिलती है और वहाँ क्या कोई एक काम कर रहा है तो दूसरे को भी लगता है कि चलो मैं भी थोड़ी हेल्प कर लूं, तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन का ही इफेक्ट है ये। तो हम सब मिलके एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, सबके साथ प्यार से रहना, क्योंकि हम क्या है, हम तो परमात्मा की ही संतान है, वो तो प्यार का सागर है, तो फिर हम में भी थोड़े गुण तो उनके आने चाहिए। हम बोलते हैं तू प्यार का सागर है, एक बूंद जो मिल जाए, तो फिर हमें भी प्रेम, दया, करुणा, क्षमा सब गुणों से अपने आप को तो ठीक करना ही है, लेकिन अपने आसपास के जो लोग हैं उसे भी अपने प्यार से उनको भी वो अपना बना लेना है सबको, और खुशी खुशी हम जी सकते हैं, खुशी का वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कि गॉसिप में टाइम बिगाड़े, दो लोग मिले एक दूसरे की गॉसिप किया तो इससे नेगेटिव एनर्जी जो क्रिएट होती है हमारी, हम फोन पे भी किसी पे से बात करते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो फिर बच्चों पर भी इफेक्ट होता है और हम एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं जिसका नेगेटिव वो इफेक्ट भी होता है। तो हमेशा खुश रहने की, दूसरों को खुश करने की, और लाइक मदर टेरेसा और सबने कितना, गांधी जी सबने कितना काम किया है। अभी तो सब पॉलिटिशियन देखो एक दूसरे की टांग खींचने से ही बाज नहीं आते, एक दूसरे का मर्डर तक कर देते हैं। हम पार्लियामेंट में जाए तो हमें कैसा लगेगा और मंदिर में जाए तो कैसा लगेगा, वहां दोनों की एनर्जी कितनी अलग अलग है। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है और बच्चों को प्यार से, सभी के साथ प्यार से रहकर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। बस इसी के साथ में अपनी बात खत्म करती हूँ। Thank you, जयश्री जी, बहुत ही अच्छा कहा आपने और सभी ने, I think we touched all those good points of how the environment has a very crucial role to play in holistic healing. And holistic healing, I mean, we can take a step towards it, but in order to accomplish it, yes, we do have to make the environment very conducive to that so that we can heal. And healing ourselves, it's similar to healing others, because what we do, I mean, it's all around us, and the circle gets bigger that way. So thank you everybody for joining, and Thank you. yes, and for Thank you. You have a very junior viewer too today. yes, In your session. of course. That's why you could not see my face all the time, because I was busy with Okay, it. no problem. But I didn't want to miss either, so I was hearing everything. It was really nice. Good. Yeah. Thank you. आप एक बहुत ही अच्छी दादी माँ हो। Yes. So next week, Saturday, 9:30, we do have, I think I was a little bit ahead of myself this time. It's a holistic healing for nurturing the womb. Nurturing the womb. So गर्भ के दौरान में कैसे होना चाहिए. So aspect of that on holistic healing. So मोनिका जी, जी कुछ विचार हम भी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, no problem. So let me just finish my thoughts. So next one will be 11th of June, Saturday, same time, and I will send out the Zoom meeting. So let's continue this. Yes, Manjeet Singh ji, please go ahead. जी, सबका अभिनंदन है
नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम। होलिस्टिक हीलिंग बहुत अच्छा टॉपिक है और जहाँ तक मेरी समझ है होलिस्टिक हीलिंग यानी कि पूर्ण स्वास्थ्य की बात हो रही है। और स्वास्थ्य इंसान का ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो 3 तरह का क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। शारीरिक और मानसिक के बारे में हम सब जानते हैं और जिक्र भी करते हैं, मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मैं बात करूंगा आत्मिक स्वास्थ्य की। और एक बात और ये है कि अगर शरीर ठीक हो और मानसिक अवस्था ठीक ना हो तो बात नहीं बनती। इसी प्रकार अगर मानसिक अवस्था ठीक हो और शरीर ना ठीक हो तो भी बात नहीं बनती। और अगर अंकल जी, मैं आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे लाइक बोलिए एग्री नहीं कर रही थी। आपने स्टीफन हॉकिंस साइंटिस्ट का नाम सुना है? वो मेंटली लाइक इतना हेल्थी था कि लाइक उसका पूरा लाइक शरीर पैरालाइज था। वो उन्होंने लाइक इतनी लाइक साइंटिस्ट खोज की है। सो अकॉर्डिंग टू मी लाइक मेंटली इज very strong. Yeah, let's maybe Rather hear than him. health. Yeah, let's hear Yeah. him fully, and then we can Yeah, touch on sure. that. Yeah, Okay. sure. Yeah, sure. No worries. Okay. Yeah, continue. तो मैं यही कह रहा था कि इन तीनों चीजों में से अगर किसी में भी कोई कमी रह जाती है तो वो पूर्ण स्वास्थ्य में कमी रह जाती है। और अगर शरीर भी ठीक है और मानसिक अवस्था भी ठीक है, लेकिन आत्मिक अवस्था ठीक ना हो, जो कि अक्सर हम सभी में ये कमी पाई जाती है, तो जीवन तो बीत जाता है लेकिन वो अंत में व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि जो आत्मिक जीवन है उसकी कोई कमाई नहीं होती, प्रभु की कोई आराधना नहीं की होती हमने, और हम प्रभु से जुड़ नहीं पाते। जीवन आता है, हम जीते हैं, फिर चले जाते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। जो प्रभु के साथ मिलन होना चाहिए था वो नहीं होता। इसीलिए जो मेरी समझ में है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि स्पिरिचुअलिटी या आत्मिक या आध्यात्मिक जीवन जो है उसका महत्व सबसे ज्यादा है। वो किस लिए है? क्योंकि जब आध्यात्मिक जीवन से हम सांझ पाते हैं, जब हम उस पर चलते हैं तो एक तब्दीली आती है हम पे। उस तब्दीली के तहत हमारा मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन से हम अपनी मानसिक और शारीरिक अवस्था भी अच्छी कर सकते हैं। इस तरह से पूर्ण स्वास्थ्य के हम मालिक हो जाते हैं और इस राह पर चलते हुए ये जीवन सफल भी हो जाता है। और इसको थोड़ा आगे ले जाते हुए मैं श्री गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी की बात करता हूँ। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जरिए हमें ये शिक्षा दी है कि शब्द गुरु के जरिए हम अपने विचार बदल सकते हैं, अपने विचारों को निर्मल, साफ और सच्चे कर सकते हैं। और इस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो मानसिक अवस्था है वो सच्ची और सुच्ची हो जाती है, यानी कि साफ हो जाती है। हम अच्छा सोचते हैं, जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे जो कर्म हैं वो भी अच्छे होते हैं, और जब कर्म हमारे अच्छे होते हैं तो ये जीवन अपने आप ही निर्मल और सच्चा सुच्चा और उत्तम हो जाता है। इस प्रकार से हमारा जो परिवर्तन है, जैसे कि प्रकृति है या फिर हमारा घर का माहौल है, काम का माहौल है या दुनिया संसार में जो माहौल है, इस सब में परिवर्तन आता है। सब कुछ निर्मल और स्वस्थ और अच्छा हो जाता है। इस तरह से हमारा जो क्या कहते हैं जीवन है वो सफल हो जाता है। तभी हम कह सकते हैं कि हम पूर्ण स्वास्थ्य एंजॉय कर रहे हैं और पूर्ण स्वास्थ्य को एंजॉय करते हुए हमारा जीवन भी सफल होता है। बाकी मैं कोई मतलब अथॉरिटी नहीं हूँ इस सब्जेक्ट पर, लेकिन जो मैंने खुद अनुभव किया है, जिससे मुझे लाभ मिला है, वो मैंने शेयर किया है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है और मैं सबको
बधाई देता हूँ कंट्रीब्यूट करने के लिए, और सबकी सोच पर मान है मुझे। शुक्रिया, धन्यवाद, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। I would like to add something, Manjeet sir. Thank you. I appreciate your concern कि हमारा जो अगर जीवन का कैलकुलेशन हो और उसमें आध्यात्मिक हमारी प्रगति 0 हो तो वो जीवन व्यर्थ ही जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हमारा आध्यात्मिक जीवन नहीं है तो वी आर लिविंग द एनिमल लाइफ, वी आर एनिमल्स। हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, वो भी खाते पीते मौज मस्ती करते हैं और सो जाते हैं, और हम भी खाते पीते सोएंगे और मौज मस्ती करेंगे। तो उसमें क्या फर्क है? मानव के हाथ में 2 चीजें हैं, वो अपने आप को ऊंचा भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। जानवरों के लेवल पे भी वो जा सकता है और ऊपर प्रभु के मिलन का भी वो प्रयास कर सकता है। ये दोनों ही चीजें व्यक्ति के हाथ में है। बहुत अच्छा मैं कहूँगा डॉक्टर मोनिका जी प्रयास कर रही हैं। पर्यावरण की जो बात है, आज हम सभी देशों में प्रयास की बात हो रही है, लेकिन एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। आप देखिए यूक्रेन और रशिया की जो एक मूंछों की लड़ाई है उसमें कितने लोग मारे जा चुके हैं, और उस लड़ाई से किसको क्या हासिल हुआ है? तो ये क्या एक हमारी मानवीय सभ्यता और संस्कृति पे एक बहुत बड़ा धब्बा नहीं? हम कह रहे हैं हम तो इतने बड़े जो है इतनी प्रगति हमने कर ली, इतनी प्रगति कर ली है कि हम गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं, और एक किसी गलत व्यक्ति को हम रोक नहीं पा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो। तो ये एक ये मिनीएचर एग्जाम्पल समाज में भी हो रहा है, ये गली में भी हो रही है। ये एक चीज, एक गलत आदमी गलत किए जा रहा है, उसे कोई नहीं रोक पा रहा है, वही चीज बड़े लेवल पे भी हो रही है। तो ये व्हाट इज दिस, हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। और हम बैठ के जो है we are trying to celebrate the life, we are trying to celebrate the things, and we are calling we have progressed so much. What is this progress कि आप जो है एक मानवीय जो सभ्यता है उसमें एक, आज मैं न्यूज पढ़ रहा था कि 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं यूक्रेन में, और वहाँ 30,000 सैनिक रसिया के मारे जा चुके हैं। उनमें उनका क्या दोष है दोनों देशों का, जो ये 1,30,000 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, और हमारी कोई भी संस्कृति, कोई भी जो है हमारे देश का कोई भी बोलने के लिए थे, और हम जो है एक आंख बंद करके बैठ गए। गांधी जी के 3 बंदर हम बन गए हैं कि ना तो हम देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, और ना ही हम बोल पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने वो एक गलत चीजों के संबंध में ये कहा था, लेकिन अगर हम उससे को रिलेट करें तो ये हमारी किस तरह की सभ्यता या संस्कृति है कि हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि हम कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। सर मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा, मंजीत सर आप भी मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि कई बार मुझे भी दुख होता है ये सब चीजें देख के। ये चीजें मिनिएचर एग्जाम्पल में किसी कॉलेज में भी हो रही हैं, किसी गली में भी हो रही हैं, किसी सिटी में भी हो रही हैं कि गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं हम, और बल्कि उसी के साथ खड़े हैं, सही के साथ कोई नहीं खड़ा है। जी बहुत अच्छी बात है, जरूर इस विषय पर विचार विमर्श होना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कहीं पर भी दुनिया में कुछ गलत हो रहा है और हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कल जो आपके साथ हुआ है वो आज मेरे साथ भी होगा। इसीलिए ये जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात है कि हमें इसके कारण ढूंढने चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। मूल कारण इसका यही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किया था, वो है ये जो शख्स है ये दुनियावी तौर पर, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर तो स्वस्थ है, लेकिन आत्मिक तौर पर मैं इसे बीमार कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को ही सब कुछ समझता है। इसने प्रभु की आराधना नहीं की, इसने प्रभु को नहीं जाना, इसने प्रभु की रजा में रहना नहीं सीखा है। इसीलिए इसको ऐसा लगता है कि दुनिया मुझसे है, लेकिन ये भूल चुका है कि ये दुनिया उस प्रभु की बनाई हुई है, उसने ही सब कुछ दिया है, और जब चाहेगा पल झलकते ही सब कुछ समेट भी लेगा। तो इसकी जो दुर्गति होने वाली है वो समय बताएगा, लेकिन जो ये कर रहा है इसको भोगना पड़ेगा। कैसे भोगेगा, किस स्थिति में काबू आएगा, ये सब समय बताएगा। लेकिन जो किसी के साथ भी बुरा करता है उसका भी बुरा ही होता है,
यही नियम है कुदरत का, यही नियम है प्रभु का, तो ये मेरा मानना है, सो मैं यही कहूँगा। शुक्रिया। Thank you, Manjeet ji. और वो जो सवाल आप कर रहे थे डॉक्टर राम शर्मा, I think it's most of the time it's happening because of this rise of the insurance companies a lot and the policies and foregoing with diplomacy. You know, looking for different alliances and stuff like that. That has a lot to do. And because I've experienced this myself too. Let's say, for example, if why can't I stay late after class because everything else is okay, except the insurance wants to make sure because they have to make it secure the premises. So they don't want to take any other responsibility, anything other than what is there. So if it finishes at the time, that is it. I should just go home, even though I might even have the key or whatever to lock up. That's so it's all comes down to because everybody's watching out. And at the same token, I was just talking to someone a couple of days ago about the playgrounds for children. All the old types of the games or the things which used to be there, the slide and the merry-go-round is being just rooted out. Okay, the new ones are there, which are made of a hard plastic and this and that, and they are being changed all the time. They don't give you they don't give the child the same type of exercise, the one that they used to get. They are getting lesser and lesser. It's a different type. It's their bodies. We can feel that they're not as strong and not as hardy as they used to be. They're different. So all of this is just going more and more into the paperwork, because nobody wants to be responsible. And everybody is handing off, and it's all becoming a market game, meaning just a money game for everybody. So that's where I think we already talked about that. It's becoming more or less, go ahead. एक चीज और हो रही है। Yes. ये गैजेट से जो छोटे बच्चे समय बिता रहे हैं, उनके हार्ट का विकास नहीं हो रहा है, उनके सेंसेशंस, उनकी फीलिंग्स जो है, उनका मानवीय विकास नहीं हो पा रहा है। और वो सोच रहे हैं कि सही अगर दुनिया है तो वो उन तक ही सीमित है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इस तरह से वो ह्यूमन बीइंग है, बाकी लोग भी ह्यूमन बीइंग है, उनके भी हार्ट है, वो भी उनकी फीलिंग्स भी हार्ट हो सकती हैं, वो भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो वो नहीं समझ पा, इस तरह का विकास ही नहीं हो पा रहा है। I thought about it. Sometimes I think it's maybe because a lot of these big companies are pumping their money into like sponsoring whatever they are sponsoring. एक छोटी सी घटना भारतवर्ष की बताऊंगा। एक पब्लिक स्कूल गुड़गांव की अभी 2-3 वर्ष पूर्व एक घटना हुई थी। और एक मुझे लगता है शायद 8वीं क्लास का वो बच्चा था और एग्जाम था, उसकी अच्छी तैयारी नहीं थी, तो उसने क्या किया कि आज छुट्टी करा दी जाए स्कूल की। तो उसने छोटे, मुझे लग रहा है फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा था, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को जो है टॉयलेट रूम में ले जाके गला घोट के मार दिया। ओह माय गॉड। जी, यही मैं बता रहा हूँ कि वो सोच ही नहीं रहे हैं कि उनकी मानवीय संवेदनाएं, भावनाएं विकसित ही नहीं हो पा रही। वो कहाँ, लेवल ऑफ थिंकिंग आप देखिए कहाँ जा रही है। No, that's what I was saying. These a lot of the companies की हो रही है। वो बच्चों के स्कूल ही ले जा रहे हैं कंसूटिंग के लिए। It's because of the education is going that way too, because they're trying to produce mass production of just students who will just go and work, not think, work. That's it. Yes, Uncle ji, sorry. Go ahead. Okay, no, continue. Go ahead, Hina. No, continue, ma'am. Continue, ma'am. It's okay. No, because in a lot of different types of discourses on education, it has come up from different countries too and stuff that body, mind and soul पे भी हमें एक कार्यक्रम करना है। हाँ, बिल्कुल, definitely. So it has been that they are trying to make students so that they can be focused only on their fields and nothing else. However, coming from my era, I think it just made me a better person. It progressed me more mentally and spiritually and emotionally too, because I had general knowledge about a lot of things. And that's how it was before. But now that is being diminished just to produce some,
service workers, factory workers, because even the jobs have become these days like this, that you only know your little part and that's it. Everybody goes, put in their little part, their little part, their little part, and that's it. And they don't know about anything else. And so they are, you're right. So कोई भी विकसित नहीं हो रहा है, वो बस उसी में ही घेरे में ही सिमटे हुए हैं, whether it's to do with education or work. Yeah. प्राचीन समय में गुरुकुल की जो पद्धति थी, उसमें आप देखिए कि राजा का जो बेटा होता था, वो भी एक गरीब बच्चे के साथ गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करता था, और वो वही कपड़े पहनता था जो एक गरीब बच्चा पहनता था, वो वही खाता था जो सब लोग खाते थे। उसमें कोई जो है स्टेटस इफेक्ट नहीं आता था कि वो एक राजा का बेटा है या एक मंत्री का बेटा है। तो वो एजुकेशन में कहा भी गया कि विद्या ददाति विनयम, कि आपके पास अगर सही में विद्या तो वो विनय आपके अंदर उत्पन्न होगी। लेकिन हम तो we are seeing big egos in universities. I am the professor, I am the senior professor, I am 1 hour senior professor than you, I am 1 day senior than you. तो ये हम देख रहे हैं, लड़ाई चल रही है, ईगोस, बिग क्लासेस ऑफ बिग ईगोस। तो विद्या ददाति विनयम। और एक चीज और है, विद्या में कहा गया है स विद्या च विमुक्त है, कि वो ही विद्या है जो आपको मुक्त कर दे हर चीज से। सही। धर्म, जाति, हर चीज के बंधन से आपको मुक्त कर दे, वो विद्या है। लेकिन हम बनते जा रहे हैं। तो ये चीज सोचने के विषय, जो चीजें पहले दी गई वो आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो इसमें मैं एक नई पीढ़ी को दोषी नहीं मानता हूँ। दोष हमारा ही है कि हम उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा वातावरण नहीं दे रहे हैं, ऐसा पर्यावरण हम नहीं पैदा कर पा रहे हैं। हम उन्हें हैंड ओवर क्या कर रहे हैं, यही मैंने पहले भी कहा था कि हम उन्हें क्या क्या लेगेसी दे रहे हैं। तो इस पे हम प्रयास करेंगे मैम। Okay, what? Sure. लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, yes. Okay, why not? Hina, did you want to say anything? जी मैं वो लाइक मैं डॉक्टर राम अंकल जी के साथ बिल्कुल फुली एग्री कर रही हूँ, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन थिंकिंग, बट सम पीपल आर वेरी हार्ड, लाइक वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही थिंक कर रहे हैं, वो किसी दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि आज मेरे पे सिचुएशन है, ये कल दूसरे पे भी आ सकती है। मैं जो आज किसी के साथ गलत कर रहा हूँ, अगर वो मेरे साथ ऐसा गलत करे तो क्या होगा। लाइक वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो अपने ही नजरिए से सिर्फ देख रहे हैं, दूसरे के नजरिए से नहीं देख रहे। आई एम फुली एग्री विद यू अंकल जी, दैट्स व्हाई लाइक फाइटिंग्स हो रही है, कंफ्लिक्ट्स हो रहे हैं। मैं लास्ट एनकरेजिंग स्टेटमेंट आपको देना चाहूंगा। जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था और उन्होंने अपना क्रूस वो खुद खींच रहे थे, कांटों का ताज उनके सर पे रख दिया गया, तो लोग हंस रहे थे, पत्थर मार रहे थे उन्हें। तो उनके लास्ट वर्ड पता है क्या थे? कि ओ गॉड प्लीज फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। इन लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। जी वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज वो अपनी ही थिंकिंग के अकॉर्डिंग थिंक कर रहे हैं, वो दूसरे के अकॉर्डिंग थिंक सोच ही नहीं रहे, दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। या एवरीबडी हैज देयर, क्योंकि बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन थिंकिंग एंड लाइक सिचुएशन सबकी डिफरेंट होती है, सबका डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। कोई अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, कोई अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, वो बट दूसरे के एक्सपीरियंस को समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज कम्युनिकेशन इज लेस, like here communication is the most important to think, like communication is the most important thing। when मैं अपने व्यूज रख रही हूँ, आप अपने व्यूज रख रहे हैं, अगर मैं अपने व्यूज नहीं रखूंगी, आप अपने व्यूज बोल रहे हो और मैं बोलूंगी ठीक है कि आप वो अपने व्यूज बोल रहे हो, कि मैं नहीं बोलूंगी अंकल कैसे हैं, नो वे। अगर मैं अपने व्यूज दूंगी, आप अपने व्यूज दोगे तो हम कोऑपरेट करेंगे, या आप भी सही बोल रहे हो कि मैं भी सही बोल रही हूँ, मैं आपको अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, आप मेरे को अंडरस्टैंड बोल रहे हो। लाइक दिस इज द मोस्ट, like according to me, like communication is the most important thing। अपने अंदर दिल में कोई नहीं बात रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दिल में कोई बात रखते हैं तो हमारी थिंकिंग आती है यार वो अंकल गलत थे, नो वे। अपने व्यूज रखो, लाइक कॉन्फिडेंस रखो टू से समथिंग, बिकॉज लाइक आजकल की इंडिया में क्या चल रहा है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं नहीं हमने नहीं कुछ भी कहना बच्चों, लाइक उनको हमने नहीं कुछ कहना, लड़ाई हो जाएगी। ये नहीं बोल रहे कि अगर आप अपने व्यूज रखोगे तो हम अपनी थिंकिंग दूसरे को बता पाएंगे, तो वो अंडरस्टैंड करेगा। अगर अगला थिंकिंग हमें बताएगा तो हम अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम अपनी थिंकिंग और व्यूज ही नहीं उसको बता पाएंगे, तो हम अपने मन में सोच रहे हैं कि नहीं नहीं वो गलत है, वो हमारे ये हमारी थिंकिंग है कि वो हमें गलत सोच रहे हैं। क्या पता कि वो हमें सही भी सोच सकता है, हमें नहीं पता कि अगले की थिंकिंग पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो दैट्स व्हाई लाइक प्यार से बात करो पर अंडरस्टैंड करो दूसरे की सिचुएशन को भी, ये नहीं सोचना कि मैं ही सही हूँ, मैं भी रॉन्ग हो सकती हूँ।
Yeah, That's it. somebody Thank has you. to take the first step Yeah, to. thank you so Yeah. much. Yeah. No, thank you. So yes, Okay. so we will move forward. Thank you everybody for participating Thank and for you. coming. And we'll see you all next Saturday. Yeah. And Jai next Shri Saturday, Aunty ji, namaste. Keep in touch. I'm not coming next Saturday. but after After that, that, yeah. I'll come. Yeah. So Okay. next Saturday Thank we'll you. have the topic for nurturing the womb. Nice to see you, Hina and That- Sharma ji, Monica. Yes. Me too, Okay. Aunty ji. Me too. Okay. Lovely. See you Hina Nice next Very time. lovely Bye person bye. I met. Bye bye. Yes. Okay. Bye. Bye bye. God Bye-bye. bless you. Okay. Bye. Thank You you. too. Thank you. Bye-bye. Bye bye.